जय गुरु जी संगत जी। आज हमारा 18वां दिन है और गुरु जी की आज्ञा से हम शुरू करते हैं। विद्या जी ने जैसे इस डिवाइन किताब की शुरुआत में कहा था कि इसमें जो लेसन्स हैं वो हमें बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, चाहे एक्सपीरियंसेस थोड़े से हैं। So initially, in the initial pages only, I think, she had written that you might find that the experiences are few, and the learnings are many. And then she said, you'll come to know how Avatar works on the growth path. वो भी हमने देखा. For little effort, he gives so much. और वो भी हमने देखा. और शुरुआत में ही विद्या जी ने ये कहा था कि this book has been written in three parts. First is like sharing the story of my journey and life experiences, then sharing my learnings on the journey, and sharing beloved master Meher Baba's messages heard in my heart. तो इस तरह से ये ऐसा नहीं लगा हमें कि विद्या जी की जर्नी है, जिस तरह से सहज भाव से हमने सारे उनके एक्सपीरियंसेस सुने और फील किए, ऐसे लगा कि नहीं, ये यूनिवर्सल जर्नी का इसने काम किया है। हमें ऐसा ही लगा कि नहीं, ये उनकी जर्नी नहीं है, ये हमारी भी जर्नी है। सो ये जो डिवाइन बुक्स होती हैं, दे वर्क एज दे सेंड यूनिवर्सल मैसेज, देन इट्स नॉट लाइक अ सब्जेक्टिव थिंग। तो ये सब पे एक जैसा काम करते हैं। तो हमने कल जैसे पढ़ा था, we read about Neelu's birth and how he met Meher Babaji, his initial journey with Babaji, his service towards him, Mandali and poor people. And we also got glimpses of his love, when Neelu said, I have been and will be with him for good and bad until I die. तो नीलू जी ने ये भी बहुत बड़ी बात कही थी, the seekers do spiritual practices, not the one who is realized. तो हमें उस क्रियाओं में बढ़ने की तो जरूरत नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ा मस्त क्या होते हैं, मस्त कौन होते हैं। मस्त आर very enlightened souls, and then we read about the fateful day when the accident happened. पर उसके बीच में हमने एक ये बहुत, जब बाबा ने उनको वो गिफ्ट रैप करके दिया था और उसमें बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, जब उस टिन में जो काऊ डंग डाल के दिया था, तो बाबा ने क्या बोला, when you realize it, your attachment to the world will pale, just as you threw away the cow dung, you will one day say goodbye to this world and its affairs. तो चाहे बाबा would just joke around or play pranks, but उसमें बहुत hidden meaning होता था। तो हमें ये भी जाना कि नीलू जी को उस जन्म में नीलू जी का he had fondness for sweets, like बेसुंदी, शीरा एंड पिठला। तो इस तरह से नीलू जी को बहुत शौक रहा है। और उसके बाद आज हम शुरुआत करेंगे इधर से, आफ्टर द एक्सीडेंट। भाई उसके बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। कहते हैं at the time of the accident when Vishnu saw Baba's facial expression, तो हमें पता है विष्णु जी उसके नीलू जी के बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। At the time of the accident when Vishnu saw Baba's facial expression, he felt uplifted. तो दुर्घटना के समय विष्णु जी ने बाबा जी के चेहरे को देखा तो उनको देखने को लगा कि नहीं, उनका चेहरा तो बिल्कुल ही डिवाइन लाइट और उस तरह से भर गया है। Glancing at Baba's bleeding face, Vishnu was overcome and saw Baba's glorious universal body and dazzling light on his face. तो उनके चेहरे पर उन्हें चमकीला सा प्रकाश, dazzling light, resplendent light देखने को मिली। He had never seen such radiance on Baba's face before. उन्होंने इस तरह का नूर, इस तरह की डिवाइन रोशनी, इस तरह की डिवाइन चमक पहले बाबा के चेहरे पर नहीं देखी थी। He was like a king. तो वो क्या लग रहे थे, ऐसे जैसे कि बहुत बड़े सम्राट हो। A victorious king, इस तरह के राजा महाराजा लग रहे थे, जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त करके आए हों, who had won a great battle. So I'm going to repeat again. At the time of the accident, when Vishnu saw Baba's facial expression, he felt uplifted. Glancing at Baba's bleeding face, Vishnu was overcome and saw Baba's glorious universal body and a dazzling light on his face. He had never seen such radiance on Baba's face before. Lord Krishna must have looked like that in his chariot on the victorious battlefield. तो सिमिलैरिटी वो लॉर्ड कृष्णा के साथ कर रहे हैं कि जिस तरह युद्ध क्षेत्र में जैसे कृष्ण जी अपने रथ पर सवार थे और जिस तरह से भगवान कृष्ण जी उस तरह लग रहे थे, तो उसी तरह तो बाबा भी लग रहे हैं। The radiance was blinding. इस तरह से radiance थी कि वो dazzle कर रही थी आंखों के, it was too dazzling for the eyes. आंखों को ऐसे चुंदवा रही थी। The radiance was blinding. Vishnu later remarked, I could see nothing else, not the car,
not the surrounding, only Baba's face in glorious triumph. तो उन्होंने कहा मुझे कुछ तो दिखाई नहीं दिया. I was oblivious of the surroundings. ना तो कार, ना तो चारों ओर की कोई वस्तुएं मुझे दिखाई दी. बस मुझे वो सिर्फ जैसे glorious triumph, जिस तरह की विजयी जो लाइट और उस तरह की जीत की जैसे खुशी होती है, उस तरह की डिवाइन रोशनी, वो ऑरा, वो मुझे बाबा के फेस पर नजर आया. After a few moments, Vishnu asked Baba if he was badly hurt. तो कुछ क्षणों के बाद विष्णु जी ने बाबा जी से पूछा कि आपको चोट लगी है. Baba nodded, pointing to his mouth and leg, but gestured for Vishnu to first check how the others were. तो इस तरह ही होते हैं अवतार, उनको अपनी कोई फिक्र नहीं. उनका पहले ये तो देखो बाकी कैसे हैं. हालांकि बाबा जी को तो सब पता ही था. The sight of the Baba had infused Vishnu with strength. तो बाबा की उस तरह से उनमें भी वो strength भर गई थी, शक्ति भर गई थी. Although one of his own legs was injured near the knee and he had facial cuts and a broken rib. तो विष्णु जी का अपना तो हाल ही बहुत बुरा था. टांगे टूट गई, इंजर्ड हो गई, और घुटनों से और चेहरे पर कितने ब्रूजेस, कट्स लग गए, और रिब्स ब्रेक हो गई. विष्णु forgot his pain and started trying to help the others. तो विष्णु जी ने क्या किया, अपनी जो पेन भूल के दूसरों की मदद करने लगे. Iraj, Pendu and Neelu had been thrown out of the car. तो हमें पता है ये लोग तीनों सारे पीछे बैठे थे. तो इस तरह का जोरों का झटका जो हुआ, वो तुरंत ही अपनी कार के बाहर उछल के गिर गए थे. नीलू and Pandyu were lying unconscious on the ground. The impact with the stones of the culvert wall had caused severe internal injuries to Neelu. तो हमें पता है वो एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था. इंटरनल इंजरीज हो गई थी नीलू जी के अंदर. Pandu's leg was broken. तो जो पेंडू थे उनकी टांग भी टूट गई थी, और उस तरह से उनकी हड्डियां टूट गई होंगी, कोई फ्रैक्चर हो गया होगा. Iraj was conscious, but 5 of his ribs got fractured. कहते हैं रज का भी देखो, उनको वैसे होश तो थी, पर 5 की 5 ribs उनकी फ्रैक्चर हो गई. Nevertheless, with superhuman effort, he managed to stand up, lean against the car, and talk to Baba. Despite of his ribs, which were badly fractured, still he could muster the courage to stand. वो superhuman effort ही वो बाबा की divine energy थी कि उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और कार के साथ ढांस लगा के खड़े हो गए और बाबा से बातचीत करने लगे. The road was completely deserted. उधर कोई भी नहीं था. It was secluded. It was deserted. But 3 minutes after the accident, a young man driving in the opposite direction from Belgaum to Pune saw the wreck and stopped his car. तो वहां से एक young man निकल रहा था, उसने अपनी कार रोकी और पूछने लगा. Vishnu and the young man helped to lift Baba into his car. तो विष्णु जी ने और उस आदमी ने बाबा को अपनी कार में बिठाया उसकी मदद से. Soon an open truck also stopped and Vishnu asked the driver, who coincidentally was also Parsi, to take Iraj, Pendu and Neelu to Rosewood. तो इस तरह से उनको डिवाइन मदद भी मिली. एक ओपन ट्रक आया एंड तो विष्णु जी ने ड्राइवर को पूछा कि भी ऐसे जो पारसी बोलते थे कि इन तीनों को आप रोजवुड ले जाएं. विष्णु then accompanied Baba in the car to Grafton, और विष्णु आप बाबा के साथ ग्राफ्टन चले गए. Baba's comfort lay in his suffering which he endured every second and took upon himself for his divine work. तो वही है, हर पल ही वो सफरिंग अपनी लेते रहते थे डिवाइन वर्क करने के लिए. Next is awakening to Baba's love. कहते हैं bleeding badly, Neelu had been placed on Bhau's bed at Rosewood. He had not regained consciousness. तो नीलू जी की तो कॉन्शियसनेस, उनको तो होश आया ही नहीं. उनको बिस्तर पर लटाया गया पर उनको कोई भी होश नहीं आया. When Dr. Aberdeen came to attend on him, he pronounced Neelu dead. तो जब डॉक्टर एक थे अबरडीन, वो आए तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये जिंदा नहीं है, इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, इनको होश नहीं है, इनकी सांसें नहीं है, अब ये उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया. Despite his obvious pain and discomfort, Baba put on a happy expression. तो बाबा ने फिर भी सब चीजों के बावजूद भी अपनी स्माइल, अपना हैप्पी एक्सप्रेशन रिटेन रखा. उनको बहुत पेन थी, फिर भी अपनी पेन को भुलाकर उनकी जो डिमिनर, अपना फेस का एक्सप्रेशन था, बिल्कुल वो हैप्पी था. The doctor was taken aback when Baba lovingly passed his hands over Bhau's face. तो डॉक्टर तो हैरान हो गया, इतनी दर्द और इतनी चोटों के बावजूद इतना सब कुछ टूट गया, फिर भी वो इस तरह से कैरेस कर रहे हैं भाऊ के फेस को. Not a word came from Baba's mouth despite the serious wounds and excruciating pain. एक शब्द नहीं निकला बाबा की इतनी सीरियस जख्म और इतने घाव और इतनी acute, severe, excruciating pain के बावजूद भी. Even in his
Even in a seriously injured state, Baba wore a smile as he showered his love upon others and chatted amicably with the doctor as if nothing serious had happened. तो ये होते हैं अवतार, उनको सब कुछ पता था किस कारण, किस यूनिवर्सल वर्क के कारण एक्सीडेंट हुआ है। स्माइल अपनी उन्होंने रिटेन की, डिवाइन स्माइल, और अपना प्यार सबके ऊपर निछावर किया और बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक एमिकेबली वैसे वो डॉक्टर से बातचीत करने लगे, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। A few days earlier, Baba remarked, nobody suffers in vain, for true freedom is spiritual freedom and suffering is a ladder towards it. Man unknowingly suffers for God and God knowingly suffers for man. तो ये बहुत बड़ी बात की है बाबा ने कहा, कोई भी व्यक्ति अकारण, कोई ना कोई तो कारण होता है ना कष्ट भोगने का, तो वो है। और सच्ची जो अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम है ना, वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता ही है। स्पिरिचुअल फ्रीडम को सबसे बड़ी फ्रीडम माना जाता है। और ये कष्ट, ये जो सहते हैं और ये सफरिंग है, अरे ये तो लेडर है, ये यही आप लोगों को ऊपर लेके जाएगी। और उन्होंने बोला है अपना, जब ईश्वर व्यक्ति के लिए जानबूझकर कष्ट झेलते हैं, और जो व्यक्ति होते हैं वो तो अनजाने में झेलते हैं, पर ईश्वर तो जान के लेते हैं, knowingly. So I'm going to read again because it is so heart touching. A few days earlier, Baba had remarked, nobody suffers in vain, for true freedom is spiritual freedom. True freedom is spiritual freedom and suffering is a ladder towards it. तो ये जान जाओ, क्या सीढ़ी है, सफरिंग ही आप लोगों को ऊपर लेके जाएगा। Man unknowingly suffers for God. Man तो जो इंसान है वो तो अनजाने में करता है ना, but God knowingly suffers for man. तो किसका प्यार ऊपर हुआ? ईश्वर का, रब है। एक्चुअली रब दिखाते हैं, ये अवतार पुरुष दिखाते हैं प्यार का असली मतलब क्या है। Vishnu, who was very close to Neelu and Sadashiv Patil, took Neelu's body by car to Mehrabad, where it was cremated that day. तो उस दिन cremation हुई नीलू जी की। Neelu's ashes were later buried near the Dhoni at Lower Mehrabad. Baba observed that Neelu was particularly fortunate to have breathed his last in his physical proximity, and it was as he would have wanted it. तो अब विद्या जी ने जैसे किताब लिखी है, तो बहुत, क्योंकि उनको तो सब कुछ याद है, तो बहुत अजीब लगता है सुन के, अगर पिछले जन्म का बंदे को सोचना पड़े किस तरह, अच्छा मेरी इस तरह से मौत हुई थी, मेरी क्रिमेशन हुई थी, पर अभी भी मैं हूं, तो इट इज सच अ सरियल फीलिंग, आई मीन विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। तो बाबा ने कहा जो नीलू चाहता था वही तो हुआ ना, नीलू जी ने यही कहा था ना, बस जब मैं मरूं तो ये मेरे समक्ष हो, तो वही बाबा ने करके दिखाया, और इस जन्म में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। Attribute to Dr. Neelu, आगे पढ़ते हैं, नीलू जी को श्रद्धांजलि। Dr. Neelu personified an ideal, if not perfect, disciple for Meher Baba. चाहे वो बहुत आइडियल, उत्तम शिष्य ना हो, पर उनको हम कह सकते हैं वो परफेक्ट, वो शायद परफेक्ट ना हो, सॉरी, बट वो आइडियल थे। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, वो तो अवतार ही परफेक्ट होते हैं। तो नीलू जी की पर्सोनिफिकेशन के बारे में ये बोला है, हाउ ही इज पर्सोनिफाइड एन आइडियल डेवोटी इफ नॉट परफेक्ट। सो डिसाइपल फॉर मेहर बाबा जी, ही डिस्प्लेड सम रेयर एट्रीब्यूट्स एंड हैड द करेज टू रिमेन विद मेहर बाबा एंड कंट्रीब्यूट इन एवरी वे ही पॉसिबली कुड। He sacrificed a lot personally and yet demonstrated the highest of gifts that he could give to Baba, true selfless love, which is what Baba desired. Dr. Neelu's life was inspiring in many ways to his patients, to his fellow members of the Mandali, and to those of us who remember him to this day. तो हमने भी जब भी नीलू जी का पढ़ा है, तो उनके बारे में वाइब्स बहुत मिलती हैं, किस तरह के हम्बल, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ रहे होंगे, ना ज्यादा बोलने वाले, बस पर अंदर अब कितना प्यार उनके अंदर भरा रहा होगा। नीलू जी वाज नॉट अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन की बहुत ज्यादा फीलिंग्स एग्जिबिट करे, पर बाबा को उनके बारे में पता था। द बेस्ट थिंग नीलू जी डिड वाज दैट ही यूज्ड टू ऑलवेज ओबे बाबा's ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग, एंड ही वाज एन आइडियल डेवोटी इफ नॉट परफेक्ट। तो बहुत आइडियल बनना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तभी तो बाबा ने कहा तुम में और मेरे में अब कोई भेद ही नहीं है, अब तो हम एक हैं। तो जब रब खुद कहे तो वो सोचिए क्या आत्मा होगी। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज मेहर बाबा एंड हिज वर्क। मेहर बाबा एंड हिज वर्क कहते हैं, अब मेहर बाबा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। Meher Baba was born as Mirwan Shahryar Irani on 25th February 1894 in Pune, India. His parents were Persian, and his father Shahryar Irani was known as true seeker of God. तो उनके पेरेंट्स पर्शिया से थे, पर्शियन थे। उनके फादर तो बिल्कुल वो भी ट्रू सीकर ऑफ गॉड रहे हैं, और उनका जो नाम था वो था मिरवन शहरियार ईरानी।
Though Meherwan was much loved and respected as a youth, there is a little about his early life that indicates his spiritual destiny. He attended a Christian high school and then Deccan College, both in Pune. तो जब अवतार भी आते हैं तो उसी तरह इंसान की तरह वो भी अपनी पूरी एजुकेशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, और इस तरह से जैसे हमने गुरु जी का भी देखा कि किस तरह शिव अंकल के साथ वो साइकिल पे इकट्ठे बैठ के पढ़ने जाते थे। तो वो दुनियावी चीजें उनको भी करनी पड़ती हैं। और गुरु जी ने हमेशा कहा है, एक बारी बात कर रहे थे, उनके कोई पिंड से ही थे, तो गुरु जी के वो फैमिली के मेंबर्स थे, तो गुरु जी ने उनको कहा एक को, दैट वट कट दे, मेहनत करया करो। दैट मीन्स गुरुजी वो गाइड कर रहे थे, ठीक है पेपर आने वाले, पढ़ाई करो। तो गुरुजी हमेशा कहते हाँ बर्डन नहीं पाना चाहिए बच्चों के पेपर ते, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, पर गुरुजी कहते मेहनत जरूर करो, वट कट दिया करो। तो मेहनत जरूर करनी चाहिए, जो, और मेहनत किसी भी तरह की हो सकती, किसी भी कार्य में हो सकती है। सिर्फ हमने उस तरह का प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, वो हमने इसमें भी पढ़ा है, ट्रू सरेंडर होता है अपना बेस्ट देना, और उसका रिजल्ट है अपने प्रभु पे छोड़ देना। अब वो अच्छा हो तब भी ठीक है, जो नहीं हो तब भी ठीक है, जब मन का अच्छा हो बहुत अच्छा है, जो ना हो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु के मन का होता है। आगे पढ़ते हैं। At the age of 19, the veil was lifted and Meherwan came to realize who he was. तो 19 साल में वो पर्दा हटा अवतार होने का, और वो किसने हटाया था, वो हमने पहले भी पढ़ा था, बाबा जान जी ने, जो मुस्लिम सेंट रहे हैं। The unveiling began one day in January 1913 when Meherwan, while cycling home from college, encountered an Asian Muslim woman known as Hazrat Baba Jan. बहुत बहुत बड़े वो भी रहे हजरत बाबा जान, एक लेडी फकीर रहे हैं। और जब वो साइकिल करते करते घर आ रहे थे तो किस तरह से उनकी मुलाकात हुई। She was reputed to be a perfect master, one who had attained God realization. From the moment of his first contact with Baba Jan, Meherwan's life completely changed. तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी लाइफ चेंज करने में। जैसे पहले भी था, 5 परफेक्ट मास्टर्स हर युग में होते हैं, और इन 5 की वजह से वो अवतरित हुए और उस तरह से उनकी वेल उतरी। He began to become acquainted he began to become acquainted his true identity as being one with God. Meherwan was then led to contact 4 other perfect masters, each of whom played a significant role in the process of unveiling. तो उनमें साईं बाबा जी भी एक थे। साईं बाबा of Shirdi and Meherwan prostrated before each other. दोनों ने एक दूसरे को माथा टेका, and Sai exclaimed, Parvardigar, 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 God Almighty, God Almighty, God Almighty. One of these masters, Upasni Maharaj, worked with Meherwan over a period of 7 years. तो 7 साल तक उपासनी महाराज जी के साथ भी रहे थे मेहर बाबा जी, वो भी परफेक्ट मास्टर रहे हैं। Finally, 1921, Upasni Maharaj folded his hands before Meherwan saying, तो अंत में जब वो 7 साल के बाद, जैसे जो भी उनका पीरियड उनके साथ रहा, उसके बाद उपासनी महाराज जी ने हाथ जोड़े और क्या कहा, You are the avatar, I salute you. Meherwan began his work as the avatar of the age. तो उनको अवतार ऑफ द एज भी कहा जाता है। उसके बाद हु इज एन अवतार? At critical junctures in human history, Meher Baba has explained God becomes man. ईश्वर ही इंसानी चोला लेते हैं। Though the titles may vary, such as Avatar, तो आप किसी भी टाइटल से उनकी मैनिफेस्टेशन को किसी तरह भी पुकार रहे हैं, such as Avatar, Christ, Messiah, the message of divine love is the same for all times. अरे मैसेज सेम ही रहता है, जिस किसी भी युग में अवतार आए वो एक ही मैसेज के साथ आते हैं, love, 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 nothing else but love. In his compassion, the avatar invariably takes the suffering of the world upon himself, and in doing so brings about the spiritual resurgence among humankind. तो क्या होता है, वो उनका तो यही होता है, वो सफरिंग ही तो लेने आते हैं अपने ऊपर, ताकि लोग जो जहां से छोड़ के आए हैं दोबारा से वही चीज अपनी जो ग्रो, जहां से वो आए थे, जो उनकी वो आइडेंटिटी है, रियल व्हाट सोल्स आर, ऑल सोल्स आर स्पिरिचुअल, वो उसको ही दोबारा से पहचाने। In light of this, Meher Baba has affirmed all the great religions as revelations of God, for it was some ancient one who inspired each of them. In the 1920s, mastery in servitude quickly became the purpose of Meherwan's life. He and his disciples tirelessly served the poor, the sick, the outcast, and the mentally disturbed by establishing schools, hospitals, and ashrams for this work.
तो मेहर बाबा जी ने आके बहुत 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 दुनिया के लिए वो उस तरह के कार्य किए, उस तरह के गरीबों के लिए कार्य किए, डाउन ट्रॉडन के लिए किए, लेप्रेसी से इन्फ्लिक्टेड के लिए किए, मस के लिए किए, बहुत बहुत तरह के स्कूल्स भी खोले गए, हॉस्पिटल्स, आश्रम्स। Throughout his life, the master personally cared for those in need. Personally देखते रहे क्या चाहिए किसी को. He washed the feet of lepers and bowed down to them, saying, "I bow down to the God in each one of you." तो इस तरह के आपको इंटरनेट पे भी इफ यू गूगल यूल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ मेहर बाबा जी, जहां पर वो सच में डाउन ट्रॉडन के पैर धो रहे हैं, और वो उनको माथा भी टेकते थे, और वो कहते थे मैं इतने हम्बल थे, मैं तुम सबको नमस्कार करता हूं क्योंकि तुम सबके अंदर ही तो ईश्वर है. I bow down to the God in each one of you. Just imagine God bowing down, in front of them. He cleaned the latrines of untouchables and worked to eradicate the caste system. तो इस तरह से हर तरह के कार्य उन्होंने किए ताकि कास्ट सिस्टम भी हट जाए. So भगवान तो बिलीव ही नहीं करते कास्ट सिस्टम में. Not surprisingly, Meher's early disciples began to call him Meher Baba, which means compassionate father. तो क्यों उनका नाम मेहर बाबा जी बन गया? क्योंकि compassion for the downtrodden, for the paupers, for the poor. तो इस तरह से उनका नाम मेहर बाबा जी पड़ गया. On 10 July 1925, मेहर बाबा began his silence. तो 10 जुलाई 1925 में उन्होंने अपने साइलेंस, अपना मौन शुरू किया. He would not utter a word for the next 44 years. 44 years तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. He said that there have been enough words given and is now time to live them. ये बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने. अरे बहुत बोला गया, बहुत सुना दिया, युगों युगों से सुनते ही तो आए हो. कितने आए, बोलते गए, क्या समझ लगी? नहीं. अब उस पे जीने का वक्त आ गया है. तो इसी करके गुरुजी भी नहीं बोलते थे, कभी प्रवचन नहीं देते थे. Even if he would utter a few words, and I mean the magnitude of words was so much that it would speak volumes. तो क्या है, तो जैसे नीम करोली बाबा जी भी यही कहते थे, कहते क्या बोलना है, जिसने करना उसने अपनी मर्जी से ही करना है. क्या इतना बोला गया तो किसी को समझ लगी? वो तो वाकई लोगों को नहीं समझ लगती. तो उस तरह के तो प्रवचन करने वाले बहुत बहुत सदगुरु हैं. क्या फिर भी लोगों को अकल आ गई? नहीं आई. वो अपनी चुस्तियां, चलाकियां, चोरियां, चमचागिरियां और उस तरह से वो चुगलियां नहीं छोड़ते हैं. चुस्त बने हुए हैं लोग. गुरुजी कहते चुस्तियां कर दे मेरे नाल, चुस्तियां कर दे. तो सब पे ध्यान देना चाहिए. सेवा, सिमरन, सत्संग, स्वाध्याय, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए. Okay. He said that there have been enough words given and it is now time to live them. Even in silence, Baba continued to communicate at many levels, but his warmth and humor remained undiminished. कहते हैं साइलेंस में तो रहते थे पर फिर भी अपने तरीके से कम्युनिकेट करते रहते थे. पर उनका जो ह्यूमर है, बिकॉज मेहर बाबा जी ऑल्सो यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स एंड ह्यूमर उनका बहुत अच्छा था और अपनी मंडली से भी बड़े मजाक किया करते थे. हमने देखा है किस तरह से वो नीलू जी को भी छेड़ते थे. वो नहीं मिटा. When he wished to use words, he spelled out what he wanted to convey by means of wooden board with the alphabet printed on it. तो बिल्कुल वो एक वुडन बोर्ड का सहारा रहते थे जिसमें अल्फाबेट्स थे, उसी के सहारे वो बातचीत करते थे. तो उनके अवतार पीरियड में कुछ रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मौन रखा. For 44 years is not a small thing, it's big thing, is like more than 4 decades. Many of his sayings and discourses were imparted by this method. After 1954, Baba gave up the board and relied only on hand gestures. कहते 1954 में तो उन्होंने बोर्ड को भी छोड़ दिया, फिर वो हाथों की उन मुद्राओं से, हैंड जेस्टर से बातचीत किया करते थे. Next is Meher Baba always stressed that he began his silence in order to break it. By choosing to speak through silence, he still continues to speak the word of God for our times. This word is an inner word, heard only in the depth of our being. तो उनकी बात कैसे करते हैं? इनर, ये जो है ना word of God, कहते उसको अंदर से महसूस करो. The word is an inner word, heard only the depth of our being. जब आप उस गहराई में पहुंचोगे तब आपको वो सुनाई भी देगा. आप चाहे आंखें बंद करें, समाधि लगाएं, मेडिटेशन, प्यार से आप भर जाए तो साइलेंस में सब आंसर्स मिलते हैं. As Baba expressed, external silence helps inner silence. बाहर की अवस्था भी अंदर की अवस्था को भी हेल्प करती है. And only in eternal silence is Baba found. In profound inner silence, I am never silent. Profound जो बहुत deep inner silence, उसमें भी मैं silent नहीं हूँ. I speak eternally. अरे मैं अंदर से बात करता हूँ. और अंदर से कौन बात करते हैं? ईश्वर. ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है. बजाय कि बाहर इधर उधर पूछें, अरे अंदर में तो जाने की, अंदर तो खोजो. रब तो अंदर बैठा है, उसको पहले अंदर खोजो अपने आप से, क्योंकि हम वो एफर्ट करना नहीं चाहते ना. हमें रेडीमेड आंसर्स चाहिए. दैट इज व्हाई वी rack our brain or we eat somebody's head. Please, you get me the answers.
डायरेक्ट कनेक्शन चलता हैगा। ये तो गुरुजी बोलते हैं, आई स्पीक इटर्नली, द वॉइस दैट इज हर्ड डीप विद इन द सोल इज माई वॉइस। अरे अंदर झांक के तो देखो, बैठो तो सही, अंदर मुझे महसूस तो करो। जो तुम्हारे अंदर जो आवाज है, जो डीप विद इन आएगी, वो किसकी आवाज है? वो मेरी आवाज है। This is the spiritual revolution Meher Baba came to usher the awakening of divine love within each individual. अरे यही तो वो रोशनी दिखाने आए थे और अभी भी हैं। 6 years after Meher Baba began his silence, he traveled to the West for the first time. There he contacted his earliest Western disciples, some of whom were eventually allowed to return with him to India for training in the spiritual life. तो इस तरह मेहर बाबा जी उस तरह से ट्रैवल भी करते रहे। एक ही था ना स्पिरिचुअल मिशन, रोशनी हर जगह फैलाना। One of the significant dimensions of Meher Baba's life is his work with God intoxicated individuals known as MUS, MASTS, MUS। तो बाबा जी ने मस के साथ बहुत काम किया क्योंकि वो पहचान गए थे। उनको तो खैर पता ही है ना, वो तो अवतार है कि जो मस्त होते हैं इनको पागल मत समझो। दे आर गॉड इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल्स, इनमें ईश्वर का नशा हमेशा छाया होता है। वो मिसफिट होते हैं सोसाइटी में, उसी धुन में वो रहते हैं। तो आम वाले, दुनिया वाले तो यही सोचेंगे ना कि शायद दे आर इनसेन, बट दे आर नॉट इनसेन, दे आर इंटॉक्सिकेटेड completely in God's love. According to Baba, there are several different types of must. तो must का भी level होता है, but they may be generally defined as spiritually advanced individuals whose love for God is so intense that they may often appear insane to most observers. In fact, Baba has explained they are not insane. उनको insane मत समझना. They simply refuse to adjust to the world क्योंकि वो ऐसी धुन में मगन है, इतनी वो उनकी enlightenment हो चुकी है। They are so spiritually uplifted souls, उनके लिए अब दुनिया में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो उस तरह की वो हरकतें करते हैं। कई बार होता है हमें रास्ते में भी ऐसे लोग दिखाई देते, बट हु नोज क्या वो कितने एनलाइटेंड हो अंदर से। So, probably they would be looking shabby or, wearing tattered clothes or something, but you never know अंदर से क्या है, lost as they are in their longing for God. Although we cannot fathom the exact nature of Meher Baba's inner work with the Mus, we do know that he gave them spiritual guidance. Beyond this, he indicated that he inwardly channeled their love for God in direction which have benefited the entire world. Baba undertook long, arduous journeys to contact Mus and others with whom he had special work. तो जिस उनको ना बाबा ने बहुत सही तरीके से चैनलाइज किया उन मस को। तो वो डिटेल में भी मैंने पढ़ा है, तो वो मतलब पढ़वाया है उन्होंने कि उनका जो जिस तरह से उन पे वर्क करते हैं ना, ताकि उनका जो चैनलाइज हो सके वो सही तरीके से हो सके और जिस तरह से बेनिफिट भी मिल सके सारी दुनिया को। और बाबा ने बहुत तरह की डिफिकल्टीज झेली, आर्जुअस जर्नीज और उस तरह के ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, टफ जर्नीज भी झेली, ताकि वो उन मस को मिल सके और उन पे कृपा अपनी बरसा सके। He had spiritual work. The statistics are staggering. From 1937 to 1946, the years of his most extensive must tours covering over 75,000 miles across India. Baba personally worked with over 20,000 mosques and with the poorest of the poor. अरे 20,000 से भी ज्यादा उन्होंने मेहर की बरसाई, और चाहे जितना मर्जी कोई निमाड़ा हो, गरीब हो, जैसा भी हो। Next is Meher Baba's mission as Avatar entered an important phase in 1949, relinquishing control over his ashram and giving up all possessions. तो इस तरह से फिर सारे पोजेशंस दे दिए गए। कहते उसके बाद इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो गया, सब कुछ दे दिया गया, छोड़ दिया गया। His ashrams and giving up all possessions, Meher Baba kept only the small plot of land on Meherabad Hill, तो छोटा सा बस प्लॉट ही अपने लिए रखा, which he had long before designated as the resting place for his physical body when he laid it aside. Baba then set out on what he called the new life. फिर वो उस दौर पे निकल गए जिसको न्यू लाइफ कहा जाता है। He made the startling announcements that during the new life, तो उस तरह की बहुत आश्चर्यजनक announcement की, he would cease to be a spiritual master and assume the role of a seeker of God. तो उस तरह से उन्होंने अपना स्पिरिचुअल मास्टर को छोड़ के ऐसा अपना रोल चेंज कर दिया कि वो भी सीकर ऑफ गॉड है। A small number of companions were chosen to accompany Baba and together they set out to live a life for what he called helplessness and hopelessness. तो उस तरह की जिंदगी बताने लगे जिस तरह पहले भी बड़ा कि नहीं वो संसार के रहमो करम पे रहे, तो उनको कोई जरूरत नहीं है, वो तो खुद अवतार है, पर ये लीलाएं करते हैं अवतार, और उनमें भी कोई ना कोई गहरा मतलब छुपा होता है। Living fully in the present without certainty of shelter and food, the new life companions gave up everything and trusted solely on the mercy of God. तो उस तरफ क्या हुआ, बाबा ने तो सारा कुछ अपने पोजेशन सब कुछ दे दिया, सिर्फ छोटा सा प्लॉट ही रखा, वो भी ताकि उधर उनका जो भी समाधि उनकी बनाई जाए। तो कहते क्या है वो
कोई ऐसी सर्टेनिटी नहीं थी शेल्टर और फूड की। उस तरह के न्यू लाइफ में किस तरह के हुआ, वो कहाँ डिपेंड करने लगे, मर्सी ऑफ गॉड, अपने ऊपर ही। Though the full meaning of the new life is still unfolding today, at least this much may be said: in the new life, God becomes fully human. ईश्वर क्या बन गए, इंसान, खुद ही उस तरह के वो करने लगे। Forging in human consciousness a new path to himself. तो उस तरह की कि अपनी human consciousness को, हालांकि वो ईश्वर है, पर वो उस तरह का करने लगे कि इन्हें human consciousness को लेके न्यू पाथ की तरफ अपने आप को ही वो उस जर्नी में आगे बढ़ने लगे। The new life is a life in the world, yet free from the world, in which the seeker loves God for the sake of love alone. जिसमें सीकर ईश्वर को क्यों प्यार करता है, सिर्फ the sake of love, not for the sake of anything. Rather, Baba ने सब कुछ forsake कर दिया था. In becoming the companion and the seeker, Baba brought into being a new way of seeing and living for those who, in years to come, would have the courage to follow in his footsteps. Meher Baba had now expressed his full divinity and his complete humanity. In 1952, he emerged from the new life to declare publicly that he was the God-man, the avatar of the age. तो इस तरह के खुद ही वो फेजेस लेके 1952 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया he is avatar of the age. For the next 17 years, Baba gave entirely of himself as he moved towards the completion of his work. Baba forewarned his disciples that his work would require great suffering of him, including the shedding of his blood on American and Indian soil. तो बाबा के जो करीबी रहे हैं डिसाइपल्स, उनको बता दिया कि ये सफरिंग जो है ना, ये उसमें उनको अपना खून बहाना पड़ेगा, अमेरिकन सॉइल में भी और इंडियन धरती पे भी। और वो क्योंकि सृष्टि सारी उनकी होती है ना, तो ऐसा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वहां पर क्यों किया। Outwardly, the suffering took the form of 2 automobile accidents. The first accident in the United States, 1952, पहला United States 1952 में हुआ, and the second in India, 1956. In one, the entire left side of his body was injured, and in the other, the entire right side was severely damaged. कहते पहली में क्या हुआ, सारी बाईं तरफ की बॉडी इंजर होगी, और दूसरे में राइट साइड। तो पता नहीं कितने सृष्टि के क्या क्या कर्म अपने ऊपर ये एक्सीडेंट जो करवाए। In spite of his suffering, Meher Baba opened the gates of his love by giving darshan to thousands of people during the 1950s and early 60s. तो फिर उन्होंने बहुत बहुत दर्शन दिए हजारों लोगों को। During this time, he made 3 visits to Meher Spiritual Center in the United States. इस दौरान उन्होंने 3 अपने विजिट किए यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर उनका मेहर स्पिरिचुअल सेंटर है, which he called his home in the West. One of his last darshans, the East-West gathering held at Pune in 1962, symbolizes the awakening of the oneness through love, which he came to bring about. People of many nations, races, and religious faiths came together as one family in the presence of divine love. And Meher Baba told the gathering what he now tells us all: May my love make you feel one day that God is in everyone. ये जो मेरा प्यार है ना, मैं चाहता हूँ मेरा प्यार तुम्हें जगाए और तुम्हें अंदर बताए कि ईश्वर सब में एक समान है और ईश्वर ही प्यार है। God is in everyone. सब में अंदर है और सब में है, be it species, anything, maybe animate or inanimate, God is in everyone. Meher Baba spent his last years in seclusion, finishing his universal work. The strain of his work took a tremendous toll on his health. वो तो है ही है, तो जो अंत के दिन है वो उन्होंने seclusion में बिताए, क्योंकि उन्होंने अपना यूनिवर्सल वर्क को समाप्त करना था और जितने कर्म सबके अपने ऊपर लिए उसका उनकी हेल्थ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। The strain of his work took a tremendous toll on his health. Nevertheless, Baba was pleased with the results, saying, "My work is done. मेरा काम हो गया." It is completed 100% to my satisfaction. Shortly thereafter, on 31st January 1969, Meher Baba laid aside his physical body to live forever in the hearts of those who came to experience his love. Meher Baba's tomb, located in Mehrabad in Ahmednagar, is a place of pilgrimage today for people from all over the world. तो उसके बाद क्या हुआ, 31 जनवरी को 1969 को मेहर बाबा जी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ा, और हमेशा से सिर्फ शारीरिक चोला इसलिए छोड़ा ताकि वो लोगों के, अपने भक्तों के, अपने प्यारे लोगों के दिलों में आ सके, उनका प्यार उधर बह सके। तो उनकी टूम कहाँ है, मेहराबाद में है, जो कि अहमदनगर में है, और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां पर सभी तरफ से, दुनिया में सभी तरफ से लोग वहां पर आते हैं उधर उनके दर्शन करने को और उनके उस तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेने को। सो इट्स अ वेरी 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 पावरफुल एंड पीसफुल एंड ट्रैंक्विल प्लेस। उसके बाद है साइलेंट रिवलेशंस।
हम पढ़ते हैं let this words be inscribed in your heart। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ध्यान से पढ़ने वाली भी है। एंड आई सीक स्ट्रेंथ फ्रॉम गुरुजी एंड मेहर बाबा जी टू मेक मी रीड the way it is, so I should not stumble over words, and I should not stammer, which I have been really doing, and I really apologize for that। बहुत बहुत गलत शब्दों का मैंने उच्चारण दिया, ग्रामेटिकली भी मैं बहुत जगह गलत हुई, प्रोनाउंसिएशन भी गलत हुई। I really apologize for that, I didn't mean it, but I don't know, as I told you that बहुत बहुत एनर्जीज ते घुमदियां रहंदियां हैगियां, and Guruji knows that। Okay, silent revelations। Okay, in Meher Baba's words, तो ये डायरेक्टली मेहर बाबा जी के मुख से निकले हैं, डिवाइन वर्ड्स। लेट दिस वर्ड्स बी इंस्क्राइब्ड इन योर हार्ट। अरे इसको अपने दिलों में बिल्कुल बसा लो, अंकित कर लो, इंग्रेव कर लो। Nothing is real but God। कुछ भी वास्तविक नहीं है ईश्वर के सिवा। Nothing matters but love for God। ईश्वर प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी मैटर नहीं करता, ये समझ लो। Nothing is real but God। कुछ भी सच नहीं है, पर क्या सच है? ईश्वर। Nothing matters but love for God। सिर्फ जो ईश्वर का प्यार है ना, वो ही मैटर करता है, फिर कोई जरूरत ही नहीं है किसी और की तरफ ध्यान देने की। God is everywhere and does everything। God is within us and know everything। ईश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनीसियंट है, ओमनीप्रेजेंट है, वही सब कुछ करने वाले हैं, वो हमारे अंदर भी हैं और उनको सब चीजों का ज्ञात है। गॉड इज बियॉन्ड दिस एंड एवरीथिंग गॉड अलोन इज। तो वो समझ के परे हैं, बियॉन्ड अस, और हर चीज में है। सिर्फ भगवान ही तो है सब कुछ करने वाले, सब जगह वो ही है, हम सबसे परे हैं, वो ही सब कुछ है और वो ही एक रियल अस्तित्व है। गॉड कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। आप उनको उनकी व्याख्यान कर ही नहीं सकते हो। ही कैनॉट बी आर्ग्यूड अबाउट। क्या आप उनके ऊपर बहस कर सकते हो? तभी तो गुरुजी ने कहा डिस्कशन करना रब नहीं मिलता। और गुरुजी के बारे में भी लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? यू जस्ट वेस्टिंग योर time। Guruji is not to be discussed, okay? Guruji is to be felt। He is God, he is love। तो कोई भी अवतारों के बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाता है। He cannot be theorized, nor can he be discussed and understood। God can only be lived। क्या आप उनकी व्याख्या कर सकते हो? उन पे बहस नहीं हो सकती, उन्हें सिद्धांतों में ढाला नहीं जा सकता, उनको समझाया नहीं जा सकता। आप सिर्फ उनके लिए, उन प्रभु के लिए सिर्फ केवल जिया जा सकता है। तो इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। You'll be wasting your time, you'll be wasting your energy। Live for God। ईश्वर के लिए जियो। Die for God। अरे मरना ही है तो ईश्वर के लिए मरो। People are making unlimited sacrifices and enduring untold sufferings for the sake of their country and political ideologies। सॉरी। तो कहते हैं कितने प्रकार के सेक्रीफाइस दिए जाते हैं ना, इतने अनटोल्ड सफरिंग्स भी ली जाती हैं। किसके लिए? देश के लिए और पॉलिटिकल चीजों के लिए, जबकि वो इतना मैटर नहीं करता है। दे आर देयरफॉर कैपेबल ऑफ सम सेम सैक्रिफाइसेस एंड्योरेंस फॉर द सेक ऑफ गॉड। अरे उसी तरह के तो सैक्रिफाइसेस ईश्वर के लिए करने चाहिए ना। और द ट्रूथ, ऑल रिलीजन्स हैव unequivocally claimed man for a life in truth। Thus it is sheer folly to fight in the name of religion। तो ये बहुत बहुत धर्म के नाम पर लड़ना तो पूरी मूर्खता है एक्चुअली। तो ये उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और सब धर्मों ने स्पष्ट तौर पर मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने की सलाह तो दी है, और इसलिए धर्म के नाम पर लड़ना नहीं ठीक है, ये मूर्खता का काम है। It is time humanity had a fresh vision of truth that matters। God is worth living for, and he is also worth dying for। All else are vain, empty pursuits and illusory values। तो यही तो है कि बाकी सब फालतू की चीजें हैं, सब भ्रम है। भगवान ही है जिनके लिए जीना चाहिए और भगवान ही है जिनके लिए मरना चाहिए। बाकी तो कोई फायदा ही नहीं है, किसी चीज की कीमत ही नहीं है, बेकार है। सब ये खोखली चीजें हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ देने नहीं वाली है। जितना मर्जी आप बाकी सैक्रिफाइसेस कर लो। और अगर हाँ, वो होते हैं सच्चे आर्मी मैन होते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए उस तरह से जान देते हैं। पर अगर धर्मों के नाम पे अपने सेक्रीफाइस किए जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। माइंड स्टॉप्ड इज गॉड, माइंड वर्किंग इज मैन। माइंड स्लो डाउन इज मस्त, माइंड वर्किंग फास्ट इज मैड। तो कहते हैं जब मन शांत हो जाता है तो ईश्वर बन जाता है, तो जब चलता है तो इंसान बन जाता है, और जब बहुत धीमी गति से चलता है तो मस्त बनता है। और उस तरह से जब
फास्ट चलने लग जाता है तो लिटरली एक इंसान पागल हो जाता है। तो माइंड स्टॉप इज गॉड, माइंड वर्किंग इज मैन, माइंड स्लो डाउन इज मस्ट, माइंड वर्किंग फास्ट इज मैड। गॉड इज योर इनरमोस्ट सेल्फ, डू नॉट सर्च फॉर गॉड आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। अरे वो तो तुम्हारे अंतर मन में है, स्वयं से बाहर मत खोजो, उनको अंदर ही खोजो। Your God, your Guru, your power is inside you. Silently cry out within your own self, beloved one, reveal yourself to me as my own real infinite self. यही तो बोला परमांस योगानंदा जी ने, पुकारो उसको, गॉड रिवील योरसेल्फ। उस तरह की तड़प, उस तरह की वो होनी चाहिए, तब ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं अपने आप को रिवील करने के लिए। Silently cry out within your own self, beloved one, reveal yourself to me as my own real infinite self. तो कहते हैं उस तरह से पुकारो कि प्रभु अपना वास्तविक रूप मेरे सामने प्रकट करो। ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली एंड ही विल सॉल्व ऑल योर डिफिकल्टीज, फेथफुली लीव एवरीथिंग टू हिम एंड ही विल सी टू एवरीथिंग। लव गॉड सिंसियरली एंड ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। कहते अपने प्रभु पे विश्वास करो, वो आपकी सारी डिफिकल्टीज को खत्म करेंगे। फेथफुली, ट्रस्ट से, पूरे विश्वास से उन पे सब कुछ छोड़ो, वो सब चीजों का ध्यान रखेंगे। जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, सूरज, ये सब कुछ बनाया है, सारे नक्षत्र बनाए हैं, और चींटी से लेकर हाथी तक सब कुछ बनाया, तो क्या तुम्हारे बारे में नहीं वो जानते? लव गॉड सिंसियरली, सिंसियरिटी हैज टू बी देयर एंड ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। तो फिर वो अपना स्वरूप आपको दिखाएंगे। द एम ऑफ लाइफ इज टू लव गॉड। तुम्हारा जो सच्चा एम है वो है ईश्वर को जानना, उनको प्यार करना। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम वन विद गॉड। ब्यूटीफुल थिंग। एम क्या है? ईश्वर को प्यार करना। और गोल क्या है? ईश्वर जैसा बन जाना। ये बहुत बहुत बड़ी बात कही है। To do this, you do not have to renounce the world. अरे इसको करने के लिए दुनिया छोड़ने की थोड़ी कोई जरूरत है, संन्यास देने की थोड़ी कोई जरूरत है। But to renounce, and if you want to renounce, क्या करना है? डिजायर्स, डिसऑनेस्टी, हिपोक्रेसी, इन चीजों को छोड़ो ना। डिजायर्स जो मतलब आपको और इन चीजों में धंसती हैं, अच्छी डिजायर्स के बारे में नहीं इधर बात हो रही है, उस तरह की डिजायर्स। डिसऑनेस्टी, हिपोक्रेसी, ये दोगलापन छोड़ो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, किसको बेवकूफ बना रहे हो? देन इन द मिड्स ऑफ एक्टिविटीज यू विल बी लविंग गॉड एंड ही शुड बी एज ही शुड बी लव। तो फिर आप कोई भी कार्य करते रहे हो, आप ईश्वर से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकेंगे। उस तरह ही प्यार करेंगे जैसे भगवान को करना चाहिए। God does not listen to the language of the tongue. ईश्वर, तुम जो बोलते हो ना शब्द या वाक्य, उसकी लैंग्वेज नहीं सुनता। शब्द नहीं मैटर करते। क्या मैटर करता है? He does not listen to the language of the mind. अरे तुम जो माइंड की लैंग्वेज को भी नहीं सुनता, माइंड तो वैसे ही बड़ा चंचल है। He responds to the language of the heart. So it is such a universal and beautiful message for everyone. God does not listen to the language of the tongue. He does not listen to the language of the mind. He responds to the language of the heart. There is nothing beyond God and there is nothing without God. Yet God can always be captured with love. तो भगवान से परे कोई है नहीं है, उनके बगैर भी कुछ नहीं है। आप प्रेम से ही, प्रेम भाव से प्यार को, अपने ईश्वर को पा सकते हैं। As stated by a seer, wealth may be sacrificed for health. अब वेल्थ को सैक्रिफाइस कर लो हेल्थ के लिए, वेल्थ फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए भी, एंड ऑल द थ्री फॉर वन्स ओन रिलीजन, चलो उसके लिए भी कर लो, रिलीजन के लिए भी कर लो। बट टू गेन गॉड एवरीथिंग इंक्लूडिंग रिलीजन शुड बी सैक्रिफाइड विदाउट हेजिटेशन। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो ना तो सब कुछ को सैक्रिफाइस कर लो, इंक्लूडिंग रिलीजन, बिकॉज we read in the laws of the spirit world up there, no religion, only one God. Everyone is praying to one God, one God, one God. Okay, God is not far from the seeker, not it is impossible to see him. He is like the sun which is shining right above you. कहते हैं जो ढूंढना चाहता है उससे परे नहीं है। और कैसे हैं भगवान? जैसे सूरज, सूर्य देवता हैं, वो सब पे अपनी अटी रोशनी देते हैं, चाहे कोई बुरा हो, जैसा मर्जी हो, उनकी बराबर से वो अपनी जो रोशनी है शाइन करती है सबके। इसी तरह का प्रभु है, सबके लिए अवेलेबल है ईश्वर। अब आपने देखना है प्यार, प्रेम भाव से उनको पहले अंदर जानिए, अंदर महसूस कीजिए। He is available for everyone. It is you who have held the umbrella of your very get it mental oppressions over your head which hide him from your view. अरे ये तुमने ही तो छतरी, अब सूरज देवता है, सूरज महाराज है, आप छतरी पकड़ लें और आपको अब उनकी रोशनी ना आए तो आप ये थोड़ी कहेंगे, आप तो ये समझेंगे सूरज है नहीं है, ये तो आपने अपने आप को ढक दिया। The problem is in you, not in God. God's blessings are being showered every moment, every second, every minute. तो उस तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है सूरज का। अगर हम ही अपनी पीठ दिखा दें सूर्य को और हम बोले सूर्य नहीं है, तो अगर हमने ही उस तरह की छतरी
और उस तरह के पता नहीं किस तरह के मेंटल इंप्रेशंस अपने ऊपर डाले हैं, तो हमें फिर उस तरह से हमने खुद ही वो प्यारे डिवाइन विजन को खुद ही छुपा दिया है. So it's hampering the real view, of divinity. You have only to remove the umbrella, and the sun is there for you to see. अरे वो cobwebs हैं जो जाले हैं, उसको हटाओ, umbrella को दूर तो करो, तो रोशनी क्यों नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर? तो इन विचारों को जिन्होंने ढक दिया है उनको, उनकी परतों को उतारो, तो फिर क्यों नहीं है वो गॉड की डिविनिटी सबके ऊपर एक समान है. इट डज नॉट हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं लाने की कहीं से लाने की थोड़ी जरूरत है. बट सच अ ट्रिवियल थिंग्स एज एन अम्ब्रेला कैन डिप्राइव यू ऑफ द साइट ऑफ सच अ स्टुपेंडस स्टार एज द सन. तो क्या है ये जो छोटी मोटी चीजों के पीछे लगे हो, लाइक दे हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेला, तो इन ट्रिवियल चीजों के कारण अपने आप को क्यों वंचित कर रहे हो इतनी ब्राइट रिस्प्लेंडेंट लाइट से? To ask for purely intellectual proof of the existence of God is like asking for the privilege of being able to see with your ears. कहते आप इंटेलेक्चुअल प्रूफ मांगते हैं अभी रब है कि नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो नहीं मैं कानों से देखना चाहता हूं. तो ऐसे नहीं होता. प्रूफ कभी नहीं मांगने चाहिए. पर ऐसे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं, गुरुजी से भी प्रूफ मांगते हैं तो गुरुजी पता नहीं इतने दया के सागर हैं, प्रूफ्स भी देते हैं. कब तक प्रूफ मांगी जाओगे? क्योंकि वो बहुत भरपूर दे रहे हैं, इसलिए लोग भी बिगड़ गए हैं, बहुत ज्यादा ओवर इंडल्जेंस कर रहे हैं. तो फिर उस तरह से गुरुजी कोई नहीं कामों के लिए लगा लिया है. तो बहुत दुख होता है ये सुनकर. अरे उनको जानना है तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने अंदर की रोशनी को जगाओ. सबसे पहले उनका ये जो सिंहासन है ना, इट इज नॉट अ प्रोसीजर कि ये चीज ऐसे लगानी है. अरे कोई गरीब है वो कैसे लगाएगा? अपने अंदर झांक के देखो, रब तुम्हारे अंदर बैठा है. You don't have to indulge in this all ostentatious things, don't be so flamboyant, just be simple. Mind cannot reach that which is beyond it. God is infinite and beyond the reach of mind. अरे ईश्वर इन्फिनिट है, तुम्हारी माइंड से परे है, तुम सोच भी नहीं सकते. रब है क्या? God's imagination creates universal mind, universal energy, and universal body contained in which are the individual minds, individual energies, and individual bodies of every being and everything in creation. तो भगवान ने तो यूनिवर्सल माइंड बनाया, यूनिवर्सल एनर्जी बनाई, उसके अंदर ये इंडिविजुअल माइंड बनाया, इंडिविजुअल एनर्जीज बनाई, इंडिविजुअल बॉडीज में. तो सोचो वो क्या है? वो तो सुप्रीम गॉड है, परमात्मा है. और इस तरह से हम जिदा गुरु जी कहते हैं इंसान है की है जो टपदा फिरदा है, गुरु जी कहते इंसान है की है. इदा दी किन्ने अखंड यूनिवर्सिस हैगे है, एक इंसान की है छोटा जा हैगा, तो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे है कुछ नहीं वैसे इंसान. Okay, God alone is real. All else that you can see and feel is nothing but a series of nothing. अरे ईश्वर ही सब कुछ है. ये जो बाकी सब है माया है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही एक सच्चाई है. All things are like a passing shadow except God. ये तो बस जाने वाली परछाइयां ही हैं. God is unchanging. All else is always changing. ये तो बात है. Change is inevitable और सब कुछ चेंज होता रहता है, पर उस परमात्मा के अलावा सब कुछ बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते. वो पहले भी थे, वो हैं, वो रहेंगे. बर्थ एंड डेथ आर illusory phenomena. तो ये तो हमने पढ़ ही लिया लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में. ये सिर्फ illusory phenomena है. ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है, एनर्जी है. आत्मा हमेशा रहती है, सदैव अमर रहती है. आत्मा की बस वो इवॉल्वमेंट होती है और डायमेंशंस में जाते रहते हैं जब तक पूरी तरह कंप्लीटली मर्ज ना हो जाए. वन रियली लिव्स व्हेन वन इज बोर्न टू लिव एज गॉड. तभी आप अच्छी तरह जीते हो जब आप अपना जो जीवन है ना वो सार्थक करो, ईश्वर की तरह जियो. द इटर्नल हु इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ. जब आत्मा को ये आ जाए ना कि नहीं मेरी ना मेरा जन्म है ना मृत्यु है, तो उस तरह से फिर आत्मा अमर हो जाती है. देन यू डोंट you're not scared of death anymore. और ये जो जीवन की बाकी चीजें आपको ट्रिवियल लगेंगी, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं जो भी चीजों होती है दुनिया में कोई ना कोई कारण होता ही है. Upon annihilating death in life by completely freeing consciousness of all illusions, man becomes God in the naked truth of his own true existence. तो यही है, इस चीजों को बिल्कुल ही खत्म करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपको सच्चाई नजर आती है. God is for those who are not for themselves. रब उना वास्ते है जो अपने लिए नहीं जिंदे, जो अपने लिए कुछ नहीं कर दे. Neither by fruitless surveys of the past, nor by elusive longings for the future, nor by enslavement to the fleeting moment, but by
taking everything for God, वो फिर ना भविष्य ना past ना present किसी चीजों में भी पास सिर्फ God God God. Say, taking everything for God, is it possible for you to experience yourself as a limitless ocean of love? तो उस तरह की फिर आप गहराई में जा सकते हो, ocean of love को महसूस कर सकते हैं. Here and nowhere else is the final solution to all your problems. We must lose ourselves in order to find ourselves. अरे अपने आप को पहले भूलो तो सही, अपने आप को खोना पड़ता है अपने आप को जानने के लिए. और वो कैसे खोगे? सब कुछ भुलाना पड़ता है, दुखों से भी निकलना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप अपने अंतरात्मा को जान सकते हैं. We must love ourselves in order to find ourselves. The loss itself is gain. फिर वो loss नहीं है, वो gain है actually. दुनियावी नजर में लोगों को लगता होगा, पर अंदर से वो gain है. We must die to self to live in God. Thus, death means life. We must become completely void to be completely possessed by God. अरे पहले खाली तो करो अपने आप को. सब चीजों से खाली करना पड़ता है, इच्छाओं से भी, एक्सपेक्टेशन से भी, दुखों से भी. दुखों का मतलब दुख आते हैं, पर आप उनको उनका एक प्रसाद समझ के आप उनको स्वीकार करते हो, तभी तो फिर ईश्वर आप में आएंगे, आप में भरपूर वो समाएंगे. Thus, complete emptiness means absolute fullness. ये emptiness नहीं है, आपको लगेगा ये emptiness है, but ये आपको पूरा भरपूर भर देगी. Have love and you will conquer the lower and limited self of cravings which veil your own true being as God. There is no sadhana, spiritual practice greater than love. अरे जितनी मर्जी साधनाएं कर लें, मैंने तो इतना जाना है गुरुजी के शरण में रह के, जब गुरुजी मिल गए ना तो फिर वो क्रियाएं, फिर और ऊपर क्या उठना है, जब गुरुजी से ऊपर तो कोई है ही नहीं. क्या करना है क्रियाएं करके, क्या करना है वो रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करके? अपने आप को अंदर मन से जान लो, वही बहुत बड़ी क्रिया है. बस ये जान लो कि गुरुजी इज लव एंड ही इज रिजाइडिंग इनसाइड यू. पर उनको अपने मन को, हृदय को निर्मल बनाएं. जैसे हम आसन साफ करते हैं ना उनको बिठाने के लिए, गुरुजी का वो अच्छा बिछाते हैं, तो इसी तरह हमने हृदय में तो हमारे मैल भरी है, हृदय में तो हमारी चुगलियां भरी हैं, हृदय में तो हमारे इतनी गंदी चीजें भरी हैं, और फिर हम कैसे बैठाएंगे गुरुजी को? तो सबसे पहले हृदय को कोमल करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, और उनकी मेहर मांगनी चाहिए. तो गुरुजी से मेहर भी तब मांगने के काबिल होते हैं जब हम कुछ अच्छा करें, और करने चाहिए सेल्फलेसली कर्म, गुड डीड्स करने चाहिए, good words, good thoughts, good deeds. There is no sadhana, spiritual practice greater than love. There is no law greater than love. And there is no goal beyond love. God and love are identical. ये बहुत प्यारी बात कही है. ईश्वर और प्यार आइडेंटिकल है, इसमें कोई फर्क नहीं है. कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ नहीं है, प्यार सबसे ऊपर है. कोई लॉ इससे प्यार से बड़ा नहीं है, कोई गोल ऐसा बड़ा. ठीक है, इंसान अपनी जिंदगी में तो बहुत गोल बनाता है, पर जो अल्टीमेट गोल है वो कोई बना नहीं पाता. वो क्या है? मैं किस तरह से भगवान के साथ साक्षात्कार हूं, वो आत्मा का गोल है. हम अपने मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, लाइफ के लिए तो बहुत गोल्स बनाते हैं. गॉड एंड लव आर आइडेंटिकल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑल बिगिनिंग्स. आई हैव बीन सेइंग एंड आई से इट नाउ and to the end of ends I will say it. He who loves God becomes God. ये बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, इतना प्यारा है, साइलेंट रिवलेशन, जिसमें सब कुछ निचोड़ निकाल दिया है बाबा ने, कि जो ईश्वर को प्यार करता है ना, वो फिर ईश्वर जैसा ही बन जाता है, सो हम बन जाता है. ओके, द मास्टर्स प्रेयर. अब हमें मास्टर्स की प्रेयर करेंगे, इसको बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे. ये है, this prayer was given by Baba during the 21 days of his special work from 13 August to 2nd September 1953, and also on several subsequent occasions. It was recited every evening by one of the Mandli in Baba's presence. To this day, this prayer is recited every morning and evening at 7 a.m. and 7 a.m. and 7 p.m. at Ismadi. कहते हैं बहुत प्यारी प्रार्थना है, जब से शुरू हुई है तब से लेकर रोज 7 बजे शुरू हो जाती है, और 7 बजे सुबह के 7 बजे और रात के शाम के 7 बजे ये उनकी समाधि पर रिसाइट की जाती है. तो हम भी गुरुजी और मेहर बाबा जी की मेहर से ये पढ़ते हैं, द मास्टर्स प्रेयर. And if you can, please kindly close your eyes. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and
imperishable. Perishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahm, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. It was a very, very, very powerful prayer. I could just feel the heat around me, powerful prayer. Energies तो वाकई होती हैं आसपास, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं. नेक्स्ट इज द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस. वी रिपेंट. तो ये प्रेयर भी बहुत प्यारी है, जिसमें हम पश्चाताप की प्रेयर करते हैं, कहते हैं, और ये मेहर बाबा ने खुद डिक्टेटेड बाय मेहर बाबा on 8/11/1952. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and according to your will. ये बहुत बहुत बेहतरीन रिपेंटेंस प्रेयर है, जिसमें हम क्षमा मांगते हैं परमात्मा उन सभी कर्मों के कारण, उन सभी शब्दों के, उन सभी विचारों के कारण जो हम सेल्फिशनेस से किए हैं और जो नफरत की वजह से किए हैं, हम उनके लिए पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, माफ कीजिए, बख्शिए बख्शिए बख्शिए. परमात्मा, गुरु जी, मेहर बाबा जी, ऑल द परफेक्ट मास्टर्स, हमें बख्शिए, हमारी भूलों को बख्शिए परमात्मा, इन पिछले जन्मों की और इस जन्मों की हमारी भूलों को बख्शिए, और हमें वो कृपा बरसाइए कि हम आगे से अच्छा सोचें, अच्छा सुने, अच्छे सोच को उपज दें, किसी के बारे में हम बुरा ना बोलें, पहले अपनी कमियों को हम देखें. So we want to repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your bounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak, to act according to your will. And next is a prayer for Baba's lovers. ये छोटी सी prayer है, इसको पढ़ेंगे. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's daman till the very end. तो गुरु जी की कृपा से, नहीं पता होता कई बारी कब अंतिम दिन होगा पढ़ने का, तो ये आज का दिन चुना. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेहर बाबा जी, तहे दिल से मेहर बाबा जी, क्योंकि सबका प्यार यूनिवर्सल होता है, सब अवतारों का प्यार यूनिवर्सल होता है. और ये बहुत बहुत प्यारे सबक के लिए आए, प्यार करो रब नू, जितना गुरु जी ने क्या, रब तो डरो नहीं, प्यार करो. जब भी किसी को वक्त मिले, पीडीएफ सबके पास है, ये दोबारा से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. साइलेंट रिविलेशंस इन मेहर बाबाज वर्ड्स, और ये प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस है, ये तो यूनिवर्सल प्रेयर है. अगर हम इसको बोलेंगे तो सच में वो जितने भी हमारे जो इस तरह के विचार आए होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं वो बख्शवाने में मदद मिलेगी. और ये प्रेयर फॉर बाबा लवर्स क्या है, और
और द मास्टर्स प्रेयर असली क्या है? वो परवरदिगार हैं, प्रिजर्वर हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ऑल हैं, ना उनकी कोई बिगिनिंग है, ना कोई उनका एंड है। तो ये दिन चुना, मेहर बाबा जी से वही बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं बाबा कि यूनिवर्सल लव सबका होता है। आपने इस किताब के द्वारा बाबा जी आपने बहुत जैसे शुरू में कहा था एक्सपीरियंसेस चाहे कम हो, लेसन्स तो इतने प्रोफाउंड थे। ये सिर्फ विद्या यदावली जी की किताब नहीं है, ये हम सब के लिए एक आई ओपनर था, इनलाइटेंड किया कि नहीं, रब क्या है और रब वाकई में कितने कर्म अपने ऊपर लेता है। रब असली प्यार रब करता है, हम क्या करेंगे? असली सेक्रीफाइस तो रब करता है। और रब जब आते हैं तो कितना प्यार करते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूं। और अगर इंसान का प्यार इतना हो जाए तो ईश्वर खुद मजबूर हो जाते हैं उनके पास आने के लिए। तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को तलाशने की बजाय तराशें कि नहीं कहाँ पर कमी है। और यही है, अपने आप को जो है वो ही रहें। जैसे कहते हैं, नहीं बदल सके हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। तो जरूरी नहीं है आपको औरों के हिसाब से अपने आप को बदलना है, जो लिबास खुदा ने दिया है वो ही बेस्ट है। तो बस यही है, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। तो हर पल अगर देखेंगे कि हमारे खुदा देख रहा है तो हम उस तरह से चीजें नहीं करेंगे। तो इस शेर से खत्म करते हैं, नाम तेरा मेरा हर गम टाल देता है। गुरु जी बाबा जी, नाम तेरा मेरा हर गम टाल देता है, जिक्र तेरी मुश्किलों में रास्ता निकाल देता है। मेरे मौला करूं कैसे शुक्र मैं तेरा अदा, जो डूबता हूं तो सागर उछाल देता है। So it has been really nice session. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. शुक्र है गुरु जी, शुक्र है उन आत्माओं का जो सब आसपास बैठ के सुनती थी। कईयों ने तंग भी बहुत किया है, बट यही मांगते हैं कि एलिवेट करें गुरुजी उनको भी। थैंक यू मेहर बाबा जी, थैंक यू यजाविली जी, थैंक यू सारे परफेक्ट मास्टर्स को, सबको बहुत प्यार भरा नमन। और ये सुनने वालों को ये बहुत बड़ी सेवा होती है। आपने मेरे जैसे कीड़े को, कीचड़ के कीड़े को आपने इस तरह से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू एकता जी एंड शिल्पी जी। It wouldn't have been possible without your platform because ये बहुत बड़ी सेवा है। So माफी मांगते हुए थैंक यू वेरी मच, क्षमा कीजिए सब गलतियों के लिए।